శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. దేవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
ओम ओम नमस्ते नमस्ते सरस्वते नमस्सकीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवै नमः पृथिव्यै ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையில் நின்ற திருமாலே நாடியவருக்கெல்லாம் வேண்டிய நல்விடும் தீர்க்கும் திருவேங்கடவா, உமது அடி பணிந்து வினைவியை வேண்டினேன். வேதம் முதல்வா, உலகம் உண்ட திருவாயா, ஊரு கலைந்து ஆட்கொள் என்னை நீயே என்று நமது மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். பக்தர்களே, வைகானச ஆகமம் படி முதலில் கலச பூஜை சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வச்சன கைங்கரியம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடர உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சர்வ விஷ்ணுமய ஜெகத்தின்கிற மூத்துரைப்படி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அர்ச்சை ரூபியாய் திருமலையில் சேவை சாதிக்கும் திருவேங்கடமுடையான். ஆகவே இது சர்வம் வெங்கடேஷமயம் ஜெகத். அந்த கலியுகம் தெய்வமான திருவெங்கட்டையானின் உற்சவ மூர்த்தியான உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களோடு நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து எம் பெருமானின் திருமருளை பெறுவதற்கு பக்தர்களை வரவேற்கிறேன். சக புண்ணியாவாச்சகர்ம ரிஷி ஆதௌ நிர்விக்னேன பிரசாப்யர்த்தம் சக்ஷநாதாதனம் ததங்க பூர்வம் கரகாராதனம் கரிஷ்யே. ओम दारा सप्तशुमान शेषु सरस्वरिपूर्देषु अभोभिरण्ठन परिवादेशे गुणामृतां तिरुं शर्मा इदमापस्वाश्वतमा शान्ता शान्तमाश्वाश्वतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मदां तसा पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यव प्राणावाप प्रजापो नमापो सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविशापो ज्योतिषापो यजविशाप सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गासिरिथ्रावाहयामि यथेषदम्बरणे सहस्रं ज्ञापाडाविदा पुत्रा तेभ्योऽनन्दरसतादु विष्णुरिष्वे देवा मुञ्चन्तु मधुस्तस्य वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्षां यादस्मृतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्य इदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदम् आचमनं समर्पयामि एते प्रोतस्त्रोत्तराभरण उपवीत पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुवादोद्भवं वृद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्मांसकरुणां निर्घ्नं समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्केकसंविधं ज्याप्तिं सङ्केतं पुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकुमर्चेत् आग्नेयोस्माद्दामेत्वा श्वेदात्तं यथोत्सम्भोः वैराजन्ते सतन्निधत्तां वृक्षां दिशाबुधानाम्नादि यामे सान्दन्दान् धातुवं भूः पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सुकृतिमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदम् आचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभास्यता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरंभे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुवर्भारस्वक्सेन सबूषणं भगवद्ब्रह्मज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचे शेवं वाचतां सुपुण्यां करोमि गुरुष्वा स्वस्त प्रोक्षतमस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवनं समूढमस्वागं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतो वृतानि वसुषे इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरातदं तद्विप्रासो विपण्यवो जार्ध्रुवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसरस द्रविणोदा सरस्वप्रेगं सुदे द्रविणोदा वीरदेशन्नो द्रविणोधारास्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपविशं यदा वै सूर्यवदति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यः गच्छेत् यत्तदिहन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते. ओम भूवतिपुरतिष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवम् अङ्गं सण्डिलपरिधिपरिसनास्रोतन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि
पुण्यां ब्रह्मतोः ब्रह्म पुण्यां कर्मणोस्तु करुण पुण्यां ब्रह्मतोः ब्रह्म पुण्यां कर्मणोस्तु करुण पुण्यां ब्रह्मतोः ब्रह्म पुण्यां कर्मणोस्तु स्वस्तिरेन्द्रस्वास्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्ठेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिः ददातु ओम भूवतिभ्रोक्तष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निधपरिवेशनास्रोत्तन्त्रिविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं ब्रह्मतोः ब्रह्मतु कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रह्मतोः ब्रह्मतु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रह्मतोः ब्रह्मतु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्मव्येनं संसद्य मित्रं देवमित्रधेयन्नोऽस्तु न राधानविषावृध्यन्तः शतं जीवेम सदस्वीराः ओम भूः अतिपुरोक्तष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निधपरिवेशनादि सर्वतन्त्रपुषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि वृद्धिं ब्रह्मतोः ब्रह्मतु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं ब्रह्मतोः ब्रह्मतु कर्मरुद्धतां कर्मण वृद्धिं ब्रह्मतोः ब्रह्मतु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्ठामयाभोस्थानम् ऊर्जेदादनां महेरणाय चक्षुषे यपस्वतमानदस्तस्य भाजयतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्याय जन्मदा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णास्य पावकायाश्चातः कस्य भुजाश्चन्द्रः अग्नेया गर्भन्धद्रे विरूपास्थानापसकृष्याना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवो धिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कर्ता कृतगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते स्वाहा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्यावरुणः समीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगाति भेषजं षण्णो अस्तद्विपदेः षण्चतुष्पदे ओम शांति 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 प्राच्याहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणादान्ति स्मसाः पितरा मार्जयन्तां प्रदीक्षाहान्ति शिखरः पशुवा मार्जयन्तां दीक्षान्तिश्चापोषधयो वनस्पतयः मार्जयन्तां मूर्धायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथोदराधरैर्नागेभ्यः मार्जयन्ताम् वास्तवाष्पदे प्रजानि अस्मान् सावेशानमेव भवानः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वशन्ने दद्पदे चतुष्पदे वास्तवाष्पदे शक्मया सुं सदा ते सक्षीमहि तरण्या गातमत्याः आवह क्षेमोदये वृण्णो यूजं पातस्तस्य विस्तदानः अमीवः वास्तवाष्पदे विश्वारूपाण्या विषन्ने सखाससेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निदास्यन्तः तमः कदं वत्सति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताक्षः समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रेत्सर्वेत्सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्चतेनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणान्मः सक्षनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्मः सक्षनान्मः गुडावार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை பரப்பி புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் பூஜித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதே அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியம். நம் ஒவ்வொருவரும் இரண்டு வகையான உறவுகள் உண்டு. ஒன்று இரத்த சம்பந்த உறவுகள், அதாவது தாய் தந்தை மனைவி பிள்ளைகள் சகோதரர்கள் போன்ற உறவுகள். இந்த உறவுகள் அந்தந்த பிறவிக்கானது. ஒரு குடம் நீரோடு உறவும் போகும். எல்லா பிறவிக்கும் இதே உறவுகள் தொடர்ந்து வருவதில்லை. வினைகளுக்கு ஏற்ப
வெவ்வேறு விதமான ஜீவன்கள் பிறக்கின்றன என்று கருட புராணம் போன்ற நூல்கள் சொல்லுகின்றன. அப்படி இந்த உறவுகள் உட்பாதிக்க உறவுகள் என்று சொல்வோம். இவர்கள் தற்காலிகமான உறவுகள். அப்படியானால் நிரந்தர உறவு ஒன்று இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அந்த நிரந்தர உறவு யார்? நிரந்தரமான தாய், தந்தை, மனைவி, மக்கள், குழந்தை, உற்றம், சுற்றம் யார்? சேலையை கண்ணியரும் பெருஞ்செல்வமும் நன்மக்களும் மேலா தாய் தந்தையும் அவரே இனியும் அவரே என்று தாய் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய் நீயாய் நீ நின்றவன்றி என்று இந்த கேள்விக்கு ஆழ்வார்கள் விடை சொல்லுகிறார். அவனே தாய், அவனே தந்தை, அவனே நட்பு, அவனே சுற்றம், அவனே செல்வம், அவனே எல்லாம். त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव என்று எல்லா உறவுகளும் அவன் என்று உணர்வதே ஆன்மீக புரிதலின் அடையாளம். ஆழ்வார்கள் உணர்ந்தால்தான் ஊரிலேன் காணி இல்லை, உறவு மற்றொருவர் இல்லை என்று பாடினார்கள். உட்பாதிக்க உறவு போகும், நிருபாதிக்க உறவு போகாது. அவனே நினைத்தாலும் போகாது. உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது என்று ஆண்டாள் நாச்சியார் அவனுக்கும் நமக்குமான உறவு அவனாலும் போகாது, நம்மாலும் போகாது என்று ஆணித்தரமாக சொல்லுகிறார். இதை தன் திருவேங்கட பாசுரத்தில் திருமங்கை ஆழ்வார் உறக்கமாக பாடுகிறார். இந்த பாசுரத்தை படித்தாலே நமக்கு உள்ளம் சிலிர்க்கும். அந்த பாசுரம் இது: தாயே தந்தை என்றும் தாரமே கிளைக்க என்றும் நோயோ பற்றொழிந்தேன் உன்னை காண தோரிசையினால் வெய்யம்பு பொழில் சூழ் விரையார் திருவேங்கடவா நாயேன் வந்தடைந்தேன் நல்கியா என்னை கொண்டருளே என்று இதன் பொருளை பார்த்து விடுவோம். அனந்தமாவாஹயாமி பிரதரதேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, இதமாச்யம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதாन् சமர்ப்பயாமி. ஹரிः ஓம். ஸ்வஸ்தி நோः வேதாம்ஷுனா भगः स्वस्ति देवेन्द्रनर्वणः स्वस्ति पूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सों स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो भवन्तनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवावन्त्रिभः स्वस्तेः स्वस्ति नोः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नोः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसोनां वारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्त्याः त्रेयं मनसा जदाक्षं प्रेतपाणि शरणं प्रपद्ये सुसं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே ரக்ஷா பூஜை என்கிற கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். அந்த ரக்ஷா பூஜையில் நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து அது ஜெயசூத்ராவதி கயிற்றுக்கு பூஜை செய்த பின்பு அந்த ரக்ஷையை சுவாமிக்கும் அவரது உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிப்பார். பின்பு ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். அந்த பகவானுக்கும் அவரது உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்து பின்பு அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது கரத்திலே கட்டிக்கொண்டு அந்த ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் முடிப்பார். தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் தவிர எல்லா ஆழ்வார்களுக்கும் மங்களா சாசனம் செய்த இடம்தான் திருவேங்கடம். தொண்டரி பொடி ஆழ்வார் திருவரங்கத்தை மட்டும் மங்கள சாசனம் செய்திருக்கிறார் என்பார்கள். அது உண்மைதான். அந்த திருவரங்கநாதனே திருவேங்கடநாதன் தான் என்பதை திருப்பான ஆழ்வார் அழகாக காட்டுகிறார். மந்தி பாய்வட வேங்கட மாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்றான் அரங்கத் தரவேன் அணையான். எனவே
பதின்மர் பாடிய பெருமாள் என்பது திருவேங்கடநாதனுக்கு பொருந்தும். நம்ம ஆழ்வார் திருவாய் மொழியை துவய மந்திரத்தின் சாரம் என்று சொல்லுவார்கள். துவயம் எனப்படும் மந்திரம் ஸ்ரீமன் நாராயணே சரணௌ சரணம் பிரபத்யே ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமஹா என்று அந்த திருமால் திருவைகுண்டத்தில் பிராட்டிக்கு அந்த மந்திரத்தை உபதேசித்து அருளினார். இதன் பொருள், பிராட்டியின் கூடிய பெருமாளின் உபய திருவடியை உபயமாக பற்றி இருவரின் சேர்த்தியிலே கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும். அதைத்தான் நம்ம ஆழ்வார் நம்முடைய சரம பிரபந்தமான திருவாய் மொழியிலே தெரிவிக்கிறார். அகலகிலேன் இறையும் என்று அலர்மேல் மங்கா உரை மார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் மூன்று உடையாய் என்னை ஆழ்வானே நிகரில் அமரர் முனி கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடநாதனே புகழ் ஒன்று இல்ல அடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே என்று. துவய மந்திரத்தின் சுருக்கம்தான் திருமந்திரம். அந்த திருமந்திரத்தின் நாராயணாய சப்தத்தின் விரிவுதான் பெரிய திருமொழி. நம் ஆழ்வாரின் திருவாய் மொழியை அடியொற்றி பாசுரங்களை பாடி அருளி செயலை நிறைவு செய்தவர்தான் திருமங்கை ஆழ்வார். நம்ம ஆழ்வார் யாரிடத்தில் போய் சரணடைய சொன்னாரோ அந்த வெங்கடவனை சரணடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே தாம் சரணடைவதற்கு முன்னால் தம்முடைய நெஞ்சினை வேகமாக அனுப்பியவர் திருமங்கை ஆழ்வார். பெரிய திருமொழியில் முதல் 10, 8வது, 9வது, 10வது திருமொழியிலும் 2ஆம் 10 முதல் திருமொழியிலும் இசை அமுதமாக தெரிவிக்கிறார் திருமங்கை ஆழ்வார். கோயில் கொண்ட கண்ணார் விசும்பிடை அமர நாயகருக்கு இன்று அடிமை தொழில் பூண்டாயே என்று பாடி அருளி செய்திருக்கிறார். திருவெங்கட முதல் பதக்கத்தில்தான் போவதற்கு முன் தன்னுடைய திருநெஞ்சை அனுப்புகிறாராம். பக்தர்களே, உதாரணமாக ஒருவன் நிறைய தான தர்மங்களை செய்துவிட்டான். அதன் புண்ணிய பலனாக பல காலம் சொர்க்க உலகத்தை அனுப்பிவித்துவிட்டு மண்ணுலகில் மிக பெரிய செல்வந்தனாக பிறக்கிறான். இத்தனை செல்வங்களோடு பிறந்தாலும் அவன் ஆன்மாவுக்கு நன்மையான சத் விஷயமான எம்பெருமானை அறியவில்லை என்று சொன்னால் ஐஸ்வர்யங்களோடு வாழும் அவனுடைய வாழ்க்கை கூட பாவ வாழ்க்கைதான். அதனால் திருமங்கை ஆழ்வார் கொன்றேன் பல உயிரை குறிக்கோள் ஒன்றும் இல்லாமையினால் என்றென்றும் இறந்தாருக்கு இனிதாக உரைத்து அறியேன் குன்றியே மேகம் அதிர் குளிர்மாமலை வெங்கடவா அன்றே வந்து அடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே என்று பாடுகிறார். இறைவன் 7 உலகங்களுக்கும் கண்ணாக விளங்குபவன். 7 என்பது எல்லா உலகம் என்று பொருள் தரும். எல்லா இசையும் 7 இசையில் அடங்கி இருக்கிறது அல்லவா? அப்படி எல்லா உலகம் என்பதை தான் 7 உலகம் என்று சொல்லுகிறோம். 7 என்பதனை பெயரடை வடிவம். அடுத்து கண்ணனை போல் காக்கின்றான். கண் என்பதற்கு இடம் என்று பொருள் உண்டு. கண்ணன் என்றால் எல்லா இடமும் பறந்து இருப்பவன். கண்ணென்றால் ஒளி என்று ஒரு பொருள் உண்டு. சூரியன் என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு. புருஷ சூக்தத்திலே சூரியனை இறைவனின் கண்ணாக வர்ணிக்கிறார்கள் அல்லவா? அதேபோல் எல்லா உலகுக்கும் சாட்சியாக விளங்குபவனே நம் திருவேங்கடநாதன். இங்கே எல்லா உலகத்தையும் கண்ணை காப்பது போல காப்பவன் என்கின்ற பொருள்படும். அது மட்டும் இல்லை, நாராயண சப்தத்தின் விரிவம் மிக அழகாக சொல்வதற்கு அடுத்த பதத்தை உயிராக்கிய என்று போற்றுகிறார். உடம்பு ஸ்தூலமானது, உயிர் சூக்ஷ்மமானது. உடம்பின் அசைவு கொண்டுதான் உயிரை உணர்த்து கொள்ள முடியும். பிரபஞ்சத்தின் அசைவுகளை கொண்டுதான் அந்த பகவானின் இருப்பை தெரிந்து கொள்ள முடியும். சேதன அசேதனங்களை தனக்கு உடலாக கொண்டிருப்பவன் இறைவன் என்கின்ற பொருளும் இங்கே வந்துவிடும். இதை நம் ஆழ்வார் திட விசும்பு ஏரி பலநீர் நிலம் இவை மிசை படர் பொருள் முழுவதும் ஆயாவை அவை தொறும் உடல் மிசை உயிர் எனக் கறந்து எங்கும் பறந்துள்ளன சுடர்மிகு சுருதியில் இவை உண்ட சுரனே என்று பாடுகிறார். திருமங்கை ஆழ்வார் உயிராய் வெங்கார் வர்ணையை பாடுகிறார்.
அடுத்து அவன் மேகம் போன்ற நிறத்தை உடையவன், மேக வண்ணன், கார்மேனி செங்கன் என்று ஆண்டாள் பாடுகிறாள். இதற்கு அடுத்தபடியாக விண்ணோர் தாம் பரவும் பொழில் வெங்கட வேதியினை என்றும் சொல்லுகிறார். பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்திலே அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் முடித்தார். இனி அடுத்த கைங்கரியத்தை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த SVBC தொலைக்காட்சியின் மூலம் திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் பக்தர்களாகிய நாம் வீட்டில் இருந்தே அந்த பகவானுடைய கல்யாணத்தை சேவிப்போம். सत्यामनुसौम्यस्तु येन मानिगाहं कदमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामेध्यं बाप्मानं यजमानस्यन्तु अष्टाबन्धकमृषणापितहरं येन देवासो जातवेद भुवनश्रेदेः तदवसर्जनिषदेः अग्निमश्वर्थादहव्यवाहुं शमीगर्भार्जनयन्व्यामयोभूः गतः प्रदीको गदयोनिरग्नि गदैः समिद्धः गतमस्यान्नं गतः पुषस्त्वा सता भवन्ति तं पिबन् श्रियायक्षदेवान् आयुर्दाग्न्यः विशोषाणो गतः प्रदीको गदयोनिरधि उपापरो हजातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं प्रजानन् ऐतेन मनिस्वा अनुमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितः प्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाधिमस्रचवेनावः सबुद्ध्या उपमासविष्टासस्यानुमतश्च ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमां सोमो वीरं करुणं दातु साधन्यं सभें पितृश्रणं ददातस्मै सोमावाहयामि ज्ञानमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाग सृष्टियजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाग सृष्टियजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेस्तु वैष्णव्यस्तु यज्ञेस्तु वायुभूतेस्तु विष्णोर्मनसा भूतेस्तु यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरसि पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसविता परशुवपुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्तरस्मैरापो देवीरग्रे भुवोग्रीं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्माणीन्द्रौणित्तूर्ययुजमिन्द्रनिध्वमृतदूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु बोसि विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु बोसि दक्षता कृतासी ध्रुवासी तारणासी वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवता वर्धयत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवता वर्धयत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणय कौव प्रणयतु सा प्रणयत्वापो देवी प्रणयानज्ञं सगं साधयन्तनः इदं वदन्तीः कृतपुष्टावदासहस्रपोषं यजमानेऽन्यञ्चतीः दक्षिणप्रदो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपावस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि विष्णुमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्ष सोमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपान्द्राष्टनवाग्नेष्टनपा सोमाष्टनवाग्नेष्टनपामि सोमाष्टनवाग्नि सोमाहाभ्याण्डष्टनपा प्रजापतिष्ठनं ब्रह्मणेष्टनपामि इन्द्राष्टनपामि सुभ्योष्टनपा मरुद्भ्योष्टनपा रुद्रेभ्यो ज्येष्ठनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्टनपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्योष्टनपामि शुभ्याण्डष्टनपामि पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि कक्षदेव सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि ज्ञेदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आज्यं त्रिपतिश्रयामि चरं त्रिपतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषसमिति स्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्ततं रक्षा अन्तर्धारातयः
प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठाराधयः चिक्वैस्वाब्ना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाब्ना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्थान पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मुराग्राभ्यं सरस्वती अध्यक्षा अक्षतां निर्विमामे गिरिजाधेन संवेगाचा शतंत सहस्रं चारितं जनितं प्रदंताधुरं द्राष्ट्रदंतां वदाद सेवामे गिरिजाधेन वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेशे नमः सोहसे नमः विरप्रसे नमः पंकिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनिस्वा नुतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसविदप्रतिभा सृष्टिसहस्राणि तमक्षयं ब्रह्ममाणिया अयन्तेत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्वसवदे जयद्वदे जास्वान् प्रजापशु ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधे स्वाहा औपासनाग्नो ब्रह्मन् समुद्धं मादास्याधस्व समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाग्नेय स्वाहा समाय स्वाहा अग्निशमाभ्यः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा पौस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सिभ्यः स्वाहा भूषणे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव समाय स्वाहा उपासना यज्ञाय स्वाहा यज्ञेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा इतेन मुकुस्ताः अनुतेन मुकुस्ताः सरस्तेन मुकुस्ताः देवसवितः प्रासाभिः ओम भूतिपुरोत्कष्टायां श्रीनिवासवानुवैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सरमन्दिरवीर्यादृणात् प्राश्तात्मतो दिवादि वैष्णवं मोक्षे ऐतेन मनुस्वानुतेन मनुस्वा सरस्वतेन मनस्वा देवदप्रसवा ओम मदो देवावन्तरदा विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानु देवदं समूढवस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यादधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्वेदावृतानि विश्वसे इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वजक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मुकुस्थाः अनुतेन मुकुस्थाः सरस्तेन मुकुस्थाः देवसवितः प्रासाभिः చూడరే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే
తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు బొడలి చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః స్మృతి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తగం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహావృషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమధవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశావతి ఇత్యష్టదేవ ప్రియవిరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమునిరుదేవరుణవాయుగుబేరీషాణాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలీతే లవణేక్షుసురాసర్పితధిక్షీరసుధారగాఖ్య సప్తాన్నమపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రవంచ సాగసాన్మలే పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలే సహ్యదృక్తమదృక్తమద్విందవర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరమణక కుర్వర్షాఖ్యణ వర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరహాకార పంచాషట్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు యహ జన్మని చ యదక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చావృత్తానావృత్త మహావారగాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతపకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యः उत्तीर्यातरेश्वरमण्डलपर्यन्तं कतराशैर्वत्सहस्रावसाने एकैकदिलापकृष्णक्रमेण सर्वराष्ट्रवगरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणिकृताग्निष्टमद्राप्ताप्तर्यां शान्तमनवाजपेयपौण्डरिकाश्वमेधादि शतक्रतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्याम्यर्चावतारस्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविष्टादियुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण
आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्छवनाप्नुवान और्ववैदल पंचार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मिकां भृगसंकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रयार्षे प्रवराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालंकृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது இந்த திருமாங்கல்ய பூஜை. அந்த திருமாங்கல்யத்தை அவரது உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க தயாராக உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யத்தை மஞ்சள் நீரில் சுத்தி பண்ணி ஷோடச உபச்சாரம் போன்ற கைங்கரியங்களை செய்த பின்பு அந்த பகவான் முன்பு வைத்து அதற்கு புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் பூஜித்து பின்பு அந்த பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து பின்பு அவரது உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. திருமணத்திற்கு வேண்டிய பணத்தை பெற்ற ஸ்ரீனிவாசன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான். விஸ்வகர்மா செய்த அலங்காரங்கள் அவனுக்கு சந்தோஷத்தை மூட்டின. திருமண நாள் நெருங்கிக் கொண்டு இருந்தது. அப்போது ஸ்ரீனிவாசன் வகுலா தேவியிடம், அம்மையே, என் திருமணத்தில் உற்றார் உறவினர்கள் அழைக்க வேண்டும் அல்லவா? யார் யாரை அழைக்க வேண்டும் என்று கூறுங்கள் என கேட்டானாம். இதை கேட்ட வகுலா தேவி, குழந்தாய், 14 உலகங்களிலும் உன்னை அனைவரும்
உனக்கு உறவினர்களே, உனக்கு உறவினர் அல்லாதவர் யார்? எனவே அனைவரையும் அழைக்க வேண்டும் என்று கூறினாராம். வக்குலாதேவியின் சொல்படி ஸ்ரீனிவாசன் எல்லா உலகங்களில் இருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் மன ஓலைகள் எழுதி மனதில் கருடனை நினைத்து கொண்டான். கருடன் அவன் முன்வந்து கட்டளை என்னவோ என்று கேட்டான். அப்போது ஸ்ரீனிவாசன், காற்றோடு நீ சென்று இந்த மன ஓலைகளை அனைவருக்கும் கொடுப்பாயாக என்றானாம். அந்த கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டு கருடன் ஆகாயத்தில் பறந்து எல்லா உலகுகளுக்கும் சென்று மன ஓலைகளை கொடுத்தான். சரஸ்வதி, பிரம்மதேவன், பார்வதி, பரமேஸ்வரன், சசி, இந்திரன், தாரா, பிரகஸ்பதி, அக்னி, யமன், வருணன், வாயு, குபேரன், சூரியன், சந்திரன் முதலிய நவகிரகங்களும் தாம் தம் மனைவிகளுடன் சுற்றத்தாடனும் தும்பூரர், நாரதர், வசிஷ்டர், அத்ரி, பரத்வாஜர், கௌதமர், ஜமதக்னி, பிருகு, சூதர், சௌகைர் முதலிய முனிவர்களுக்கும் தம் தம் மனைவிகளுடன் அவரவர்களின் சிஷ்யர்களுக்கும் லட்சக்கணக்கான அந்தணர்களும் ரம்பை, ஊர்வசி, மேனகா முதலிய தேவலோக பெண்மணிகளும் கருடர், கந்தர்வர், யூக்ஷர், கிணறர், கிம்பூஷர் முதலிய எல்லா மக்களும் சேஷாத்திரத்திற்கு விஜயம் செய்து விஸ்வகர்மா நிர்மாணித்த வீட்டில் தங்கினராம். திருமணத்திற்கு வந்தவர்கள் அனைவரும் சந்தோஷப்படும் அளவிற்கு அக்னி பகவான் நல்ல விருந்து ஒன்று அளித்தார். குபேரன் ஆடை ஆபரணங்களை கொடுத்தான். வாயு தேவன் தென்றலின் மூலம் நறுமணம் கொடுத்தான். இந்திரன் திருமண ஏற்பாடுகளை நேரில் இருந்து கவனித்தான். வசிஷ்டர் முக்கிய புரோகிதராக நியமிக்கப்பட்டார். இவ்வாறு திருமண ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடந்தன. பின்பு ஸ்ரீனிவாசன் மங்கள ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் என்று பிரம்மதேவன் சொன்னான். வக்குலாதேவி, பார்வதி, அருந்ததி முதலியவர்கள் மங்கள ஸ்நானத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாட்டை செய்தார்கள். நறுமணம் வீசும் பன்னீரை பல குடங்களில் நிரப்பி வைத்தனர். இரத்தினங்களால் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு பீட்டத்தில் ஸ்ரீனிவாசனை அமரச் செய்து மங்கள வாத்தியங்கள் இசைக்க சுமங்கலி பெண்டீர் பாடல்களை பாட ஸ்ரீனிவாசனுக்கு நல்ல மனம் வீசும் எண்ணெயை தலையில் தடவினார்கள். பன்னீர் ஜலத்தில் குளிக்கச் செய்தனர். பிறகு நெற்றியில் திலக்கமிட்டனர். கன்னத்தில் திருஷ்டி புள்ளி வைத்தனர். எல்லோரும் தமக்குரிய ஆடை ஆபரணங்களை தரித்து மணவரை நோக்கி புறப்பட்டனர். ஸ்ரீனிவாசன் கருட வாகனத்தில் அமர்ந்தான். பிரம்மதேவன் அன்னத்தின் மேலும் பரமசிவன் ரிஷபத்தின் மேலும் வீற்றிருந்தான். இந்திரன் முதலியவர்கள் தமக்குரிய வாகனங்களில் அமர்ந்திருந்தார். ரிஷிகளும் சுமங்கலி பெண்டிரும் பல்லக்களில் அமர்ந்திருந்தார். ஜெய பேரிகையுடன் மங்கள வாத்தியங்களுடன் முழங்க ரம்பை முதலானவர்கள் நடனமாட, கந்தவர்கள் பாட, நாரதர் முதலான முனிவர்கள் ஜெய கீதங்கள் பாட, ரிஷிகள் வேத மந்திரங்கள் ஓத, 8 திக்குகளிலும் இந்த ஆடல் பாடல்கள் எதிரொலிக்க நாராயணபுரத்திற்கு ஸ்ரீனிவாசன் புறப்பட்டான். வழியில் பத்ம தீர்த்தம் இருந்தது. அதுதான் சுத மகரிஷியின் ஆசிரமம். மணமகன் பரிவாரத்துடன் வந்து கொண்டிருப்பதை அறிந்த அந்த சுத மகரிஷி ஸ்ரீனிவாசனிடத்து சென்று, சுவாமி, மன கோலத்தில் தாங்களை தரிசித்து நான் புனிதம் அடைந்தேன். எத்தனையோ நாட்களாக எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது. என் ஆசிரமத்தில் ஒரு கணம் தங்கி நான் கொடுக்கும் விருந்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார். அதை கேட்ட ஸ்ரீனிவாசன், முனிவரே, தங்கள் வார்த்தையை மீற எனக்கு விருப்பம் இல்லை. நீங்கள் எனக்கு வேண்டியவர் ஆயினும் என் பரிவாரத்தை பார்த்தீர்களா? இத்தனை பேருக்கும் உங்களால் விருந்தளிக்க முடியுமா என்று கேட்டான். அதற்கு சுவாமி, உங்கள் கருணை இருந்தால் எதுதான் நிறைவேறாது? 14 உலகங்களும் உன்னிடத்தில் இருக்கின்றன. நீங்கள் திருப்தி அடைந்தால் எல்லோரையும் திருப்தி செய்தது போலாகும் என்றாராம். அதற்கு ஸ்ரீனிவாசன் புன்னகை செய்து, அப்படியே ஆகட்டும் என்றாராம். சுத்த மகரிஷியின் விருப்பப்படி ஸ்ரீனிவாசன் அவர் ஆசிரமத்திற்கு சென்று மகரிஷி கொடுத்த காய் கனிகளை விருப்பத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டார். அதை பார்த்த முனிவர்களும் தேவர்களும் தமக்கு விருந்து அளிக்கவில்லையே என்று அந்த சுத முனிவரின் போரில் கோபமுற்றனர். அதனை அறிந்த ஸ்ரீனிவாசன் ஆசிரமத்திலிருந்து வெளியே வந்து அதிகம் சாப்பிட்டது போல் ஒரு ஏப்பம் விட்டாராம். அப்போது தாமும் விருப்பத்துடன் சாப்பிட்டதாக எண்ணி அனைவரும் சேர்ந்து ஏப்பம் விட்டனராம். ஆகாஷ மன்னனின் தலைநகரான நாராயணபுரம் வெகு விமர்சையாக அலங்கரிக்கப்பட்டது. திருமணத்திற்காக செய்த அலங்காரங்கள் மிகவும் நேர்த்தியாக இருந்தன.
பத்மாவதிக்கு அரண்மனை செடிகள் மங்கள சாசனம் செய்வித்தனர். பட்டுச் சேலையை உடுத்தி எல்லா வகையான நகைகளையும் அணிவித்தனர். திருமகளை போல் பத்மாவதி காட்சியளித்தார். இதற்குள் ஸ்ரீனிவாசன் வந்திருப்பதை அறிந்த ஆகாச மன்னன் பத்மாவதியை பட்டத்து யானை மீது அமரச் செய்து மங்களவாதியுடன் ஸ்ரீனிவாசனை அழைக்க புறப்பட்டார். பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த திரு மாங்கல்யத்துக்கு பூஜித்தார். பின்பு அந்த பகவான் முன்பு வைத்து இதோ பக்தர்களாகிய நமக்கெல்லாம் அந்த திரு மாங்கல்யத்தை காண்பித்து நாமும் அந்த திரு மாங்கல்யத்தை சரணாகதி அடைந்து கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த திரு மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிப்போம். प्रजापतिस्तमुखं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियं चरुद्भ्यो दाति श्रियंबसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि सुभगे लक्षत्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु. प्रजापतिस्तामुखं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्तं विपरेतना माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम्. भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तो. ಘನమైన ಕಂಕಣము ಕಟ್ಟರೆ
अग्ने प्रथमो देवतानागं सह सप्रजामृतभाषात् तदेकं राजावृणोन् मनदामधे गुस्त्रीवत्रमहनरोधा स्वाहा इमाम् अग्निस्त्राताङ्गारभत्य प्रजामृतमुत्यभाषात् तदेकं राजावृणोन् मनदामधे गुस्त्रीवत्रमहनरोधा स्वाहा इमं मे वर्णस्थितिः मद्वारमुडियात्मां वसुराजके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणामदमनस्दाशाः स्तेजमानो अविर्भिः अहेडमानवर्णेः भोदृशं समानाय प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्निवर्णस्विद्वान् देवस्य हेडवया श्रेष्ठाः जुष्टवनितमसोष्ठानो विश्वाद्वेषागुं सुप्रमुत्य स्वाहा सतन्नो अग्नेमो भवदीनेधि स्वज्युष्टौ अवयक्षणवर्णमराणो विहिम्डीकं सुहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायतः हयासन् हव्यमूषे यानो देवे जग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्वते नमः जयप्रासावीः ॐ भूतिवृत्तिष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होषे ऐतेन्मनिस्वा नमतेन्मनिस्वा सरस्तेन्मनिस्वा देवसवितः इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्य इमां लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदाग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानवबन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातय मम स्वाहा उदाजिसा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेण दस्थामृतागं मनु विश्वावदत्त्वया भुजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानवबन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातय मम स्वाहा उदाजुसा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानवबन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातय मम स्वाहा उदाजुसा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन मुखस्ताः देवसवितः प्रासावीः पुरोत्कृष्टायां स्थां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रे वर्यादननात् प्रायश्चात्थं मतोदिवैष्णवं होष्यैतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः ॐ मतो देवाहुन्तिर्दविष्णुचक्रमे दिव्यास्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानदेवदं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगपादाभ्यां धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसिद्धः प्रधानस्येन्द्रस्यजसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमो जार्ध्रवागुं दस्समिन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ओगुं स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः जयसवितः प्रासावीः ॐ भूतिवृत्तिष्ठायां स्वां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलदत्तं पुरुष्टात् तन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ॐ यदस्सकर्मणोत्तिरिदमिद्यान्नं महाकरम् अग्निस्सष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते सुताहतावदेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नदाय स्वाहा अग्नेन्वदये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तवदे नमः वास्तवदे स्वाहा इन्मात्मनाम् इन्दाबोधग्निस्तत्त्वनरः जातवेदावचक्षुः स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनेन्द्रबृहस्पतिः पुनन्मेश्व्याजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा द्योराध्ये स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतम षट्कृतमत्तिनो अग्नचग्ने अतिरिक्तकर्मणे क्षेनं ज्ञपर्वान् प्रणेतकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा
यथो धीमे स्वाहा समितेजस्तेजमिदे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे बाय स्वाहा सूर्य धीमे चक्षुर्मे बाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे बाय स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तहिपा सप्तर्षि सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंद्रिय सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवोर्भुक्तं पृथिवीर्भुक्तं वोषधे वनस्पति गन्धर्वाशेषभुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधे वनस्पति गन्धर्वाशेषजीर्णं समन्तां भरकादेन समासेन समृद्धि समिन्द्रेण श्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छत यत् स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तहिपा सप्तर्षि सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा जन्ति सप्तयोनिरावृण स्वाहा घृतेन स्वाहा ओम अग्निस्त्रिपदो वेदिस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो द्विस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधि वनस्पतिरासे जयप्यन्तां यक्षप्रदामः प्रपितामः साक्षी मस्तत्रिप्यन्तां तेन मगस्ताः सस्ते नमगस्तादि विप्रासाभिः पवित्रमस्य पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि क्षमा मे चेष्टा प्राचाः माद्यन्तां दक्षिणायां माद्यन्तां दीचाः दक्षिणा पुष्पा माद्यन्तां दीचां दिशा भोषे वनस्पति माद्यन्तां भूर्भाजाः विजयसंवत्सरो अथो धराधरे नागेः भ्यो माद्यन्ताम् आप्यायन्त्वा आप्यायन्त्वा मा बवोषधयो मृदां पृषदयश्च दिवं गच्छतदानुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादे लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्षे त्र्यायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाजा शताजा शतञ्च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामय भूस्थानमूर्जितयातना महेरणाय कृष्णे यापस्तुतमार्गस्तभावेदेनः सतीर्वमात्रः अस्मारङ्गमापोष्याय जन्मधा आपो जनेधा जनः यत्यग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्यग्ने अर्थस्येनाहम् अर्थस्य भूयासं यत्यग्ने हरस्येनाहम् हरस्ये भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योध्राजो ददातु जोक्षसूर्यं दृशे देवतागान् मात्वा नमः जातवे से भगवान पर्जरदवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिर्वारुद्यात्मना वा प्रति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः कामाय नमः दास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि भाग्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यम् उपगच्छ सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே,
திரு வெங்கடவனின் திரு கல்யாண வைபவத்திலே நாம் அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மது பார்க்க பூஜை போன்ற கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டு இருப்பது வாரணம் 1000. நாளை வதுவை மனம் என்று நாள் இட்டு பாலை கழுகு பரிசு உடை பந்தர் கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஓர் காலை புகுந்து கனா கண்டேன் தோழி நான். ஆண்டாள் தான் என் பெருமானை திருமணம் புரிவது போல் கனா கண்டு தன் தோழிகளிடம் கூறுகிறாள். அந்த பாசுரம் வாரணம் 1000 நிகழ்ச்சியில் ஆண்டாள் பாடலை பாடிக்கொண்டே அர்ச்சகர் சுவாமியும் அன்னமய்யா வம்சத்தினரும் தேங்காய்களை உருட்டும் நிகழ்ச்சி. அதன் பொருள், தோழி நாளைக்கு திருமணம் என்று நாளை உறுதி செய்து திருமண பந்தலை அலங்கரிக்கின்றனர். அதுவே வாரணம் 1000 என்கிற நிகழ்வு. இனி அடுத்த ஒரு அருமையான கட்டம் மாலா பரிவர்த்தனம், அதாவது மாலை மாற்றுதல். மலர்களில் பல நிறம் கண்டேன், மாலவன் வடிவம் அதில் கண்டேன் என்ற சொல்லுக்கு இறைவனுடைய வழிபாட்டில் மலர்களுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்று பொருள். மலர்களுக்கு மனிதனுடைய எண்ணங்களை கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு. பெருமாளிடம் எனக்கு நிறையா பொருளை கொடு, தனத்தை கொடு என்று வேண்டிக்கொண்டு மலர்களை சமர்ப்பித்தால் அவன் பிரார்த்தனை பெருமாளை சென்றடையும், பலனும் உடனே கிடைக்கும். இது மலர்களால் செய்யப்படும் அர்ச்சனையின் ரகசியம். திருமணங்களில் மாங்கல்ய தாரணத்திற்கு பின் மலர் மாலைகளை மணமக்கள் மாற்றிக்கொள்வார். மலர்களில் உள்ள நறுமணத்தின் வாசனை என்றும் ஒவ்வொருடைய இயல்பும் ஒரே மாதிரி இல்லை. மனதின் தொகுப்புக்கு வாசனை என்று பெயர். அப்படிப்பட்ட அந்த நறுமண மலர்களை மாலைகளாக அணிந்து கொண்ட எம்பெருமான் இதோ தான் அணிந்த மலர் மாலையை அர்ச்சகர் சுவாமியின் மூலம் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அனுப்புகிறார். அதேபோல் பெருமாள் அனுப்பிய மாலையை தாயார் சூடிக்கொண்டு பெருமாளுக்கே அனுப்புகிறார். மறுபடியும் பெருமாள் பூதேவி நாச்சியாருக்கு அனுப்புகிறார். தாயார் தான் சூடிக்கொண்ட பிறகு பெருமாளுக்கு அனுப்புகிறார். இப்படி மலர் மாலைகளை மாற்றிக்கொண்டு மிகவும் இனிமையான இல்லற வாழ்க்கையை தொடங்கவே இந்த மாலை மாற்றுதல் நிகழ்ச்சியை நாம் தரிசனம் செய்து கொண்டோம். பக்தர்களே, இதையடுத்து அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை ஆனதும் தலம்பராளு என்கிற நிகழ்வு நடைபெறும். மங்கள அக்ஷதத்தை எம்பெருமான் திருவடிகளிலும் தாயார்களின் அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பிக்கிறார். கோவிந்தா తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.